Good morning all. In the previous classes we have already studied about the angle and how to measure in which quantity the angle was measured, that is in degree and in radian. So we have already familiar with degree, but in class 11 we have newly studied about radian measurement. So we have already studied about what is radian, that is when the arc length of 1 unit form the angle formed by the arc length of 1 unit in an unit circle. So in unit circle means when the radius of the circle is 1 unit, and if the arc length is also 1 unit, taken as 1 unit, then the angle formed by the arc at the center will be your 1 radian. Okay. So again we have already studied about the formula, that is the relation between the angle at the center, the arc length and the radius when the angle is in radian, that is theta equal to L by R. This formula that we have already studied. Theta equal to L by R. Okay. So now we are going to learn about how to convert the degree into radian and the radian into degree. Okay. Relation between degree and radian. So today we are going to learn about relation between degree and radian. So what is the relation between degree and radian? So to derive the relation between degree and radian, let us consider a circle. Let us consider a circle, okay, having radius R, having radius suppose R. Okay, let R be the radius of the circle. Okay, so उसका सपोज जो रेडियस जो होगा वो क्या होगा, R होगा. तो if R is the radius of the circle, then we know that its circumference C will be 2 into pi into R. Okay, this is we have already studied in class 10th also, 9th, 10th. And the circumference will be 2 pi R. So if the circumference of the circle is 2 pi R, then suppose in one revolution means if a body starts from this position and after revolving one round, then his or her journey is end from this position. Okay, तो जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ पे सपोज वो एंड करेगा, then उसका वन रिवोल्यूशन वो कंप्लीट हुआ. ओके, सो इन वन रिवोल्यूशन व्हाट इज द आर्क लेंथ? द आर्क लेंथ विल बी इट्स सर्कमफेरेंस. ओके ना, its arc length will be its circumference. Then we know that in one revolution the total angle covered will be 360 degree. This thing, the total angle covered will be 360 degree. ये चीज तो हम लोगों को पता है ना. सो डिग्री में हम लोगों को पता है कि जो एंगल जो होगा वो क्या होगा, 360 डिग्री होगा. लेकिन टोटल को सपोज हम लोग एक आर्क ले लें, सो आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय इट्स रेडियस, दैट इज L बाय R. तो हम लोग को क्या मिलता है, L बाय R जो है वो हम लोग को मिलता है थीटा, दैट इज
द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर व्हेन थीटा इज इन रेडियन ना, व्हेन थीटा इज इन रेडियन, ये मिलता है ना। तो जब थीटा इक्वल टू एल बाय आर फॉर्मूला पड़ता है, अप्लाई जब होता है तब क्या होगा, एल और आर दोनों तो लेंथ में रहेगा, लेकिन थीटा उस टाइम क्या होता है, रेडियन में होता है। मीन्स एल मीन्स द आर्क लेंथ एंड आर मीन्स द रेडियस एंड थीटा इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द आर्क लेंथ आर टू द सेंटर ऑफ द सर्किल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल हैविंग रेडियस आर यूनिट, है ना। व्हेन थीटा इज इन रेडियन, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, थीटा जो होगा वो पूरा रेडियन में रहना जरूरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा, क्योंकि ये जो है ये रेडियन का डेफिनेशन है ना। सो थीटा इक्वल टू एल बाय आर, ये चीज हम लोग को मिला है यहाँ पे देखो। देन सपोज 1 रिवोल्यूशन में एल का जो वैल्यू होगा वो 2 पाई आर होगा और रेडियस जो है वो सेम रहेगा, तो क्या होगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, सेंटर में कितना एंगल फॉर्म किया है वो मिलेगा। तो इसमें लिखते हैं फॉर 1 रिवोल्यूशन, for one revolution total angle covered in degree will be what, 360 degree। टोटल एंगल कवर्ड इन डिग्री इज 360 डिग्री, तो हम लोग को पता है ऑलरेडी। देन इन 1 रिवोल्यूशन द वैल्यू ऑफ एल दैट इज द आर्क लेंथ विल बी व्हाट, 2 into pi into r, okay, l equal to 2 pi r। then total angle covered in radian, then total angle covered in radian will be what, arc length divided by radius। What is the arc length, 2 pi r, 2 into pi into r divided by r। So here r and r both are cancel out from the numerator and denominator, we get this equal to 2 pi, this is in radian। So in 1 revolution the total angle covered is 2 pi radian, and we have already known that in 1 revolution the total angle covered in degree is 360 degree। Then we can equate 360 degree equal to 2 pi radian, okay। Then 360 degree equal to 2 pi radian और 1 degree equal to 2 pi by 360 equal to pi by 180 रेडियन। तो ये चीज मिला 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, और अगर इस साइड हम लोग 1 रखेंगे तो 1 रेडियन इक्वल टू इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, so this will be your 180 by pi degree। So this is the formula to convert the degree into radian and the radian into degree, okay। 1 degree equal to pi by 180 radian and 1 radian equal to pi by 180 degree। तो इसी हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मतलब डिग्री में दिया हो तो रेडियन में चेंज कर सकते हैं, रेडियन में अगर दिया हो तो डिग्री में भी उसको चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो क्या होगा देखो,
लेकिन ये चीज ध्यान रखना, जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें पाई जो है वो प्रेजेंट रह सकता है, बट व्हेन वी आर कन्वर्टिंग द रेडियन इनटू डिग्री तो उसमें तुम लोग जो पाई जो है उसको रिमूव करने की कोशिश करना। ओके, सपोज आई हैव टू कन्वर्ट 30 डिग्री इंटू रेडियन, 30 डिग्री, तो हम लोग क्या पता है 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, तो 30 डिग्री इक्वल क्या होगा 30 इंटू पाई बाय 180। तो फॉर्मूला क्या होगा, इफ वी आर कन्वर्टिंग द डिग्री मेजर into radian measure, then we have to multiply pi by 180. Okay, and if we are going to convert the radian measure into degree measure, then we have to multiply 180 by pi there. Okay, तो यही चीज हम लोग इसमें करना है कन्वर्शन के लिए। तो उसमें डिग्री में दिया है, सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई व्हाट 30 इंटू पाई बाय 180। तो पाई बाय 180 मल्टीप्लाई कर लिए तो उधर से वो चेंज हो गया रेडियन में। दिस इक्वल टू, इसको काटेंगे, सो 0 0 कैंसल आउट, 3 6 जा 18, सो वी गॉट पाई बाय 6 रेडियन। सो 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन। Similarly, if we are going to convert the degree, radian into degree, then suppose 2 pi by 3 radian is there. 2 pi by 3 radian is there. So, if we are going to convert it into degree, then we have to multiply 180 by pi there. So 180 by pi multiply करेंगे, कैंसिल कर लेंगे, सो क्या होगा 3 इंटू 60 इक्वल टू 180, सो 60 इंटू 2 इज 120 डिग्री। तो ये जो था ये तुम्हारा डिग्री में ऑलरेडी चेंज हो चुका है, क्योंकि इसमें हम लोग 180 बाय पाई मल्टीप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, तो ये तो गया। लेकिन देखो एक चीज इसमें एग्जाम्पल में भी है तुम लोगों का, कि जब भी हम लोग डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो उसमें पाई रह सकता है, लेकिन जब भी रेडियन को डिग्री में चेंज कर रहे हैं तो उसमें हम लोग का जो पाई जो है वो नहीं रह रहा है इसमें, लेकिन कुछ में क्या होगा पाई जो है वो रह जाएगा। तो उसमें हम लोग क्या करना है 22/7 पुट करके उसमें हम लोग को फ्रैक्शन बना रख के उसको जितना स्मॉलर यूनिट में चेंज हो सके उतना स्मॉलर यूनिट में उसको हम लोग को चेंज करना है। जैसे कि मैं इसमें एक एग्जांपल कर रहा हूँ, तो देखो one example is there, that is convert 6 radian into डिग्री, कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू डिग्री। 6 रेडियन को सपोज हम लोग को डिग्री में चेंज करना है, सो हाउ कैन वी कन्वर्ट इट। तो ऑलरेडी हम लोग को पता है 6 रेडियन इक्वल टू 6 इंटू, अगर 180 बाय पाई हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो वो बन जाता है डिग्री। ओके, सो दिस इक्वल टू, ये चेंज हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रहा है, इसमें पाई का जो टर्म है वो बच जा रहा है। सो पाई का टर्म अगर बचेगा तो उसमें हम लोग क्या करना है 22/7 जो वैल्यू जो है उसको पुट करना है। 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 22/7 डिग्री, सो दिस इक्वल टू 6 इंटू 180 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22। ओके, so here we got 3, here we got 11, this equal to this degree, this equal to अभी क्या होगा देखो, मल्टीप्लाई करेंगे, so 54 into 7
3780 डिवाइडेड बाय 11 डिग्री, इसमें चेंज हो चुका है। सो दिस इक्वल टू, अब देखो इसको हम लोगों को क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में सपोज इसको चेंज कर लेंगे। दिस इक्वल टू ये होगा 3 then 48, then this will be 4 43 3 4 3 3 4 3 and it is 7/11 डिग्री। तो देखो 343 तो पूरा है, अब क्या होगा 7/11 जो है वो एक्स्ट्रा आ गया है, 7/11 डिग्री ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री। लेकिन इसको अभी हम लोग और छोटे यूनिट्स में चेंज कर सकते हैं, एंड दैट आर, व्हाट आर द स्मॉलर यूनिट्स, एनीवन टेल मी? मिनट एंड सेकेंड ना। सो we are going to convert the degree into minute, and after that the minute into second. Okay, so this is equal to 343 degree plus, so if 1 degree equal to 60 minute, then 7/11 degree will be 7/11 into 60 minutes. This is a symbol of minutes, na. So this is equal to 343 degree plus, this is 420/11 minute. This is equal to 343 degree plus 390, so 8 2/11, 38 of 2/11 minute. So this is equal to 343 degree plus 38 minute plus 2/11 minute. Then again we can convert 2/11 minute into 2/11 into 60 seconds. तो उसके आगे और छोटा यूनिट नहीं है। So 343 डिग्री plus 38 minute plus 120/11 सेकेंड। तो इसको प्लस करके नहीं लिखेंगे, दिस इज योर 343 डिग्री, 38 मिनट एंड 1 0 then 10 100 means 9 सेकेंड। ओके, तो इतने में हम लोग उसको रख लेंगे, 343 डिग्री, 38 मिनट एंड 10.9 सेकेंड। तो डिग्री में कहीं पे अगर पाए आए तो उसको उसमें 22/7 तुम लोग पुट करना और उसको निकालना। लेकिन रेडियन में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें पाया आएगा, हे आएगा। ओके, उसको तुम लोग फिर से 22/7 पुट करके मत निकालना। ओके, तो ये तो गया हाउ टू कन्वर्ट द डिग्री इनटू रेडियन एंड रेडियन इनटू डिग्री। तो उसके आगे और कुछ तुम्हारे कुछ एग्जाम्पल्स जो है, ठीक है, इसमें बुक्स में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो उसी में से मैं एक एग्जाम्पल कर रहा हूँ, तो तुम लोगों को वो आसानी से समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन में सपोज दिया है सपोज में दिया है 2 arc lengths two arcs having same lengths, two arcs having same lengths forms 65 degree and
110 degree at the center of the two circles. Okay, find the ratio of their radii. Radii means plural form of radius. Na? So find the ratio of their radii. Two arcs having same length. दो आर्क्स हैं जिसका लेंथ जो है वो सेम है, तो दैट मीन्स दो आर्क लेंथ अगर डिफरेंट एंगल्स अगर फॉर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो छोटा डिग्री जो है वो बड़ा सर्किल में होगा और जो बड़ा जो डिग्री है वो क्या होगा, हमेशा छोटे सर्किल में होगा, क्योंकि आर्क लेंथ सेम है। तो दो सर्किल हैं, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। तो इसमें क्या हो रहा है, एक आर्क लेंथ जो है वो 110 डिग्री का कर रहा है। ओके, तो इसमें क्या होगा, उसी आर्क लेंथ 65 डिग्री का करेगा। ओके, उसी आर्क लेंथ 65 डिग्री का करेगा, यही दिया है। ठीक है, सो मैं उल्टा कर लिया हूँ, इसमें क्वेश्चन को चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ 110 एंड 65 कर लेता हूँ। डायग्राम जो है वो गलत बना दिया, 110 डिग्री एंड 65 डिग्री। ओके, तब क्या होगा, देखो सपोज इसका जो रेडियस जो है वो R1 है और इसका रेडियस जो है वो R2 है, तो हम लोग क्या करना है, R1 और R2 के बीच में रेशियो निकालना है। यही है ना, R1 और R2 के बीच में रेशियो जो है उसको ही निकालना है। दोनों का आर्क लेंथ जो है वो सेम है, लेट दिस इज योर L। तो इसमें तुम लोग एक चीज ध्यान रखना, डायरेक्टली इसको तुम लोग थीटा इक्वल टू L/R वाला फॉर्मूला अप्लाई मत करना, क्योंकि इसमें जो सेंटर में जो एंगल जो है वो क्या है, वो तुम्हारे डिग्री में है। सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन। तो इसको पहले हम लोग को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 110 डिग्री इक्वल टू 110 इंटू π/180 रेडियन। सो दिस इक्वल टू क्या होगा, ये कैंसिल होगा, तो ये होगा 11π/18 रेडियन। एंड सिमिलरली 65 डिग्री इक्वल टू 65 इंटू π/180 रेडियन। रहने देते हैं इसको, वैसे भी कैंसिल होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग को पता है दिस इज सपोज योर θ1 एंड दिस इज सपोज योर θ2। ओके, तो क्या होगा, θ1 इक्वल टू L/R1, ये तो पता है हम लोगों को, एंड θ2 इक्वल टू L/R2। ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट हम लोग को R1 और R2 निकालना है ना। So R1 equal to L/θ1 and R2 equal to L/θ2। तो अगर हम लोग R1/R2 निकालेंगे तो क्या होगा, L/θ1 डिवाइडेड बाय L/θ2। So L and L both are going to cancel out from the numerators of both numerator and denominator. Okay, so this is equal to, we got θ2/θ1. So your θ2 is 65 into π/180 divided by θ1 is इसको भी वैसे करते हैं 11π/180, so 11π/18, so 18 and this is cancel out and we got 10, π/5 both are cancel out, so here we got 65
65 by 110, and we got this equal to if we are going to cancel out from 35, then we got 13 by this is 22. So we got the ratio as 13:22. This is the ratio of the radii. So in this exercise we are going to meet this type of questions. Okay, so try to solve these questions, and if you have any doubt then you can ask me. Okay, तो अगर कुछ भी डाउट हो तो इसमें से तुम लोग मुझे पूछ सकते हो, लेकिन जो एग्जांपल्स जो है और एक्सरसाइज जो है, पहला जो एक्सरसाइज है 3.1 उसको तुम लोगों को आज करना है. ओके.